गाइस आनंद जा रहे हैं एमसीए ऑफिस। तो रीज़न इज़ कि वहाँ पे जो हमारे सपोर्टर्स है डॉक्टर नीरज एंड डॉक्टर अरमान, उन्होंने कॉल अप किया है बिकॉज एमसीआई इज़ नॉट गिविंग अ लेटर। तो लेट्स सी। मैं अभी हो रहे हैं 11:16, लगभग 1 घंटे 20 मिनट दिखा रहे हैं मैप्स पे। तो वो तो लेट ही गया थोड़ा सा, बट चलो ट्राई करते हैं। रास्ते में अगर ट्रैफिक ना हो तो जल्दी पहुँच जाएंगे। निकलते हैं द्वारका के लिए, वहीं पर अपडेट्स देंगे जैसे भी हो रहा है। और एमसीआई ऑफिस पहुँचने मुझे पहले मिले विजय भैया, प्रवीण भैया, इनके साथ बातचीत हुई। और फिर जब वहाँ पहुँचे तो देखा थोड़ी पुलिस गाड़ी आ रखी थी, तो देखा फिर वहाँ पे क्या हो रहा है। उसके बाद हम गए थोड़ा गेट वेट पे, देखा मेन गेट पे क्या सीन चल रहा था वहाँ पे। तो मेन गेट पे कुछ लाइक सब भीड़ इकट्ठी हो रखी थी वहाँ पे और डिस्कशन चल रहा था कुछ। एंड देन माई फ्रेंड्स kept on calling me and asking me like what's the status, what's going on, like they wanted to know what's happening out there because they were far away and could not come. So like I was constantly sending them pics of what all is happening out here. And then it was almost 12:30 and I reached on time. Then I met a few of my more friends, like they were like Deepak Bhaiya and Akash Bhaiya and Himani Di. They're all from Have Medical University, so we all have studied in the same university. With the passage of time, the number of people kept on increasing there, and Dr. Arman and Dr. Niraj were still there. Like the guards out there, they were not allowing them to go inside. So for those of you who don't know what's the issue was, it was like everybody gathered here just they wanted a letter from MCI to decrease the passing percentage of FMG from 50% to 30%, like it's for NEET PG and other competitive exams, like to increase the number of doctors to deal with COVID crisis. And the number of people out there started increasing, as you can see in the picture. A lot of people are present out here. यहाँ पे भीड़ बहुत है इस वक्त, कम से कम होंगे 500 लोग। और पता नहीं क्या है अभी, सब खड़े तो हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बैठी है। ये विजय भैया, दीपक भैया, अरे प्रवीण भैया कहाँ गए? So actually what was happening here right now is Dr. Niraj and Arman, they had somehow gone inside and they were just asking like we need a letter from the MCIs giving the comments which the health ministry had asked them to do. So basically it was all about to decrease the passing percentage of FMG from 50 to 30%. Last week they got a letter from MCI, like MCI recommended FMG should decrease the passing percentage. Then it went on to the health ministry. Within 2 days, like they replied to a letter and they asked for the comments. So now like they had the thing is they had to give the comments because we have an exam on 31st of August and everything has to be done before 31st of August. So that's why the things had to be done in a hurry, and that's why we were demanding the things from MCI. So if MCI gives a letter right now, so the percentage can be decreased, and so that's why people all gathered here. Now since Dr. Woods, who is the secretary of MCI, he asked us to be here today. He was supposed to give the letter today, so we all were waiting for him. Since he was not here, so we all just sat down to maintain like a distancing and also ask for our rights. Then later on the police also came. I guess somebody from not the MCI but somebody else called the police saying that like the people like darted here and they are gonna create some mess. So police came and they were asking like what the issue was. So we explained them like such is the issue. So they also cooperated well and they understood like we have genuine demands, so they cooperated with us and helped us ये मेरे को मिनिस्ट्री ने बताया। Now the crowd increased and there were a lot of people waiting for the letter from the MCI secretary. So we want letter. We want letter. We were not here to protest or make some chaos out here, so we were just demanding that there should be no violence or means no, but if you shout or yell at something, it's just we should be relaxed and we should silently ask for our demands from the MCI, Medical Council of India. Now after waiting for 2 to 3 hours in the scorching heat of the sun, everybody started demanding that Dr. Woods should come and meet them. And then Dr. Arman requested Dr. Woods to come and meet them. So let's see what he said. सर मेरा नाम डॉक्टर भूपेंद्र अरमान चौरसिया है।
मैं इंडियन फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट वेलफेयर एमसीआई गुरुकुल ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूँ। नीरज जी हैं, नीरज चौरसिया मेरे ब्रदर हैं। हम लोग यहाँ पर आए थे, फॉरेन मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं लगभग 1 लाख डॉक्टर्स, उनकी आवाज़ बन के हम यहाँ आए थे। चूँकि भारत सरकार ने ऑलरेडी, हेल्थ मिनिस्ट्री ने हमारे लेटर को एक्सेप्ट कर लिया था और उनने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डायरेक्टर साहब से अपने कमेंट मांगे थे। तो उस कमेंट के लिए डॉक्टर वत्स ने आज हम लोगों को बुलाया था कि 7 तारीख को जब आप आएंगे तो मैं आपको लेटर दे दूँगा। पर आज जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लगभग 1000-2000 डॉक्टर्स इकट्ठा हुए हैं, पर डॉक्टर जो खुद आए हैं सब, जो डॉक्टर वो खुद आए, उनको हमने नहीं बुलाया। उनको पता था आज ऐसा कुछ होने वाला है, वो खुद आए। डॉक्टर आर के वत्स यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनको पुलिस ने भी फ़ोन किया है, वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। हमारा पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, जैसे एमसीआई पिछले 3 साल से नीट पीजी का जो है परसेंटाइल कट ऑफ कम कर रही है, उसी प्रकार 50% से 30% कर रही है। 50 इसी प्रकार से हम लोग चाहते हैं कि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एफएमजी एग्जामिनेशन लेती है, इसका परसेंटेज जो है 50 से 30 किया जाए। अगर ये होता है तो हमने इनको फ़ायदे भी बताए। 1 महीने के अंदर हमारे भारत देश को 30,000 डॉक्टर मिल जाएंगे, जो 30,000 डॉक्टर में इंटर्नशिप, फ्री इंटर्नशिप करने को तैयार है, जिनको सरकार को एक पैसा भी नहीं देना और वो रूरल ट्रेनिंग पे जा सकते हैं। मतलब हमारे भारत को 30,000 डॉक्टर मिलेंगे जो कि गांव में काम करेंगे। आप BHMS BMS डॉक्टर को आप लोग करने का तैयार है, बट आप ये MBBS रजिस्टर्ड डॉक्टर को देते हो, 30,000 लोग आपके लिए काम करेंगे और सरकार का 2500 करोड़ इस चीज़ से बचेगा। 30,000 डॉक्टर आपको मिलेंगे कोविड फाइट के लिए और आप लोगों का यहाँ पर 2500 करोड़ सरकार का बचेगा। तो हमने यही सब चीज़ें उनको दी थी रिप्रेजेंटेशन में कि सर इस चीज़ को आप आगे बढ़ाइए, और अगर ये करते हैं, और हम लोग कुछ यहाँ पर अलग चीज़ नहीं मांग रहे हैं। ऑलरेडी नीट पीजी के लिए पिछले 3 साल से ये करे जा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की सीट खाली ना रहे हैं। तो यहाँ पर तो सर सरकार में गवर्नमेंट हॉस्पिटल उनकी सीटें खाली पड़ी हैं, तो आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि हॉस्पिटल पे हम लोग जो डॉक्टरों को कैसे पहुँचाएं। तो ये हमारी मांग थी और ऑलरेडी इस चीज़ को उन्होंने आगे फॉरवर्ड करने का बोला था, बट आज मिलने का हमें समय दिया था और वो आज मिलने ही नहीं आए और हमें अभी तक लेटर नहीं दे रहे हैं। तो मेरी सरकार से भी यही विनम्र अपील है कि देश के अच्छे के लिए और सारी चीज़ के लिए, जो कि मोदी जी और डॉक्टर हर्षवर्धन जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे देश के लिए, तो हम यही चाहते हैं कि ये जो 30,000 डॉक्टरों का है, इनको किया जाए एक महीने के अंदर 30,000 डॉक्टर में मिल जाए। अंदर जो लीगल एडवाइज़र हैं उनसे हमारी बात हुई है, उनने कहा कि डॉक्टर वत्स अभी यहाँ अवेलेबल नहीं है। ऑलरेडी आपका मुद्दा हेल्थ मिनिस्टर साहब तक पहुँच चुका है और आज मिनिस्ट्री में, हेल्थ मिनिस्ट्री में मीटिंग भी हुई है इसके रिगार्डिंग। हम इनसे बस एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि हमको डॉक्टर वत्स ने ऑलरेडी कमिट की थी, कि हमको लेटर की कॉपी दे दीजिए, क्योंकि लेटर की कॉपी जो भी होगी उसके रिगार्डिंग फिर हम लोग आके डॉक्टर हर्षवर्धन साहब से या हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से इसके रिगार्डिंग हम मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर वही उनसे कह रहे हैं कि हमें लेटर की कॉपी दे दीजिए। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि आप लोग, चूँकि ये कोविड-19 सिचुएशन है और पुलिस वाले जो हैं वो हमारा साथ दे रहे हैं, बट वो भी मिनिस्ट्री से उनको ऑर्डर है, होम मिनिस्ट्री से उनको ऑर्डर है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप लोग अब परेशान मत हो, आप लोग अपने अपने घर चले जाओ। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जब तक लेटर नहीं लेंगे जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम भी नहीं जाएंगे, साइड में चले जाएंगे। नहीं साइड नहीं, एक से रुको बेटा, क्योंकि कोविड सिचुएशन है, पुलिस हम लोगों का सच में सपोर्ट कर रही है पूरी तरीके से, और उन लोगों को होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर है सब, एक मिनट, उन लोगों को होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उनका सारी चीज़ें हैं, उन्होंने हमें सारी चीज़ों का कमिटमेंट कर दिया। उन्होंने कहा कि सर इतने लोगों को अलाउ नहीं कर सकते, उन लोगों का भी बिल्कुल बात सही है। तो आप लोग प्लीज़ जाएं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हम लोग खुले दिल से बोल रहे हैं, ऐसी कोई ज़रूरत या कुछ चीज़ का नहीं है, सारा बात हो चुका है ना। चलो मैं यहाँ पर हूँ, नीरज सर, जब तक हमारी चीज़ नहीं होगी, जब तक वो चीज़ के लिए हमें, ठीक है, क्योंकि लीगली इतने सारे लोग, जैसे भी आप लोग सब अपना अपना सुन के सारी चीज़ें हैं, लीगली सब लोग इतना नहीं बैठ सकते। वो डॉक्टर सब, वो सब भी समझ रहे हैं कि सारे डॉक्टर एजुकेटेड लोग हैं, इसलिए वो कॉपरेट कर रहे हैं। तो प्लीज़ मैं निवेदन करता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुले दिल से बोल रहा हूँ, मैं कोई आर्टिफिशियली नहीं बोल रहा हूँ आपको कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि भाई रुक जाओ और ऐसे चले जाओ। आप लोग सब लोग अपने अपने घर चले जाइए, पुलिस प्रॉपर कॉपरेट कर रही है और अपना काम सारा हो रहा है। हमें ऑलरेडी सर भी बात कर रहे हैं, बट आप प्लीज़, क्योंकि कोविड सिचुएशन है और आगे ऊपर CBI से और बहुत सारी जगह से भी प्रॉब्लम हो गई है, सब लोगों पे बहुत प्रेशर है, और होम मिनिस्ट्री से डायरेक्ट आदेश आए कि इसको आप जल्दी से जल्दी चीज़ें करें, नहीं तो फिर और दिक्कतें हो सकती है और हमारा काम भटक सकता है। हम कामों को भटकाना नहीं चाह रहे, इसलिए आप लोगों से चीज बोलना है ना। तो प्लीज सारे बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज ठीक है, अभी जाएं, हम लोग जो है ऑलरेडी उन लोगों ने सारी चीजें कर ली है, हम उनसे वो चीज करके फिर आपको अपडेट करते हैं। इस चीज के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहे हम लोग, अपने घर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जाएं और हम लोग हैं, और हम लोग जब तक नहीं होंगे जब तक रहेंगे, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर भी भीड़ मत रखिए, आप लोग उधर जाके कैब करें, क्योंकि यहाँ पर कैब आएगी, धूप में खड़े हो, वहाँ पर जाके आप आराम से कैब लेके उधर जाएं, यहाँ से बिल्कुल सब लोग निकल जाएं, प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और बस फिर यही सब सुन के हम लोग चले गए, वहाँ पे कुछ खाना पीना खाया और उसके बाद वापस अपने घर की तरफ निकल पड़े।